Hello everyone, welcome to our channel. Let's shine. We have already started life processes. Now, what are life processes? The sum total of all the processes that make the living organism alive and do the job of maintenance and repair of the body of the living organism. And we have done various life processes are nutrition, excretion, transportation, then respiration. Today we will study about nutrition. Now, what is nutrition? We know that all the living organisms they perform various activities. Internally in the body, various processes are performed, various activities are performed. And when we see living organism, they walk on the road, they are cycling, they are doing various types of work. But for doing this, what they need? They need energy. And if someone is not doing any work, he is sleeping, but his heart that is beating. Various activities are done inside the body, various enzymes are produced, various hormones are produced. For all these processes, for all these biochemical activities, energy is needed. And from where this energy comes? All the living organisms they require energy, and that energy is provided to the living organism by an external source. All the living organisms they take food, and that food that is utilized by the body for getting energy for the various biochemical activities. That food is composed of various organic and inorganic substances, and that are known as nutrients. And this nutrition, that word is derived from that word nutrients. Nutrients are organic and inorganic compounds of food. So the process of taking food by the living organism for getting energy and for various biochemical activities, the process is known as nutrition. All the living organisms they need energy, and for that getting energy they do show the process of nutrition. All the living organisms they take food. Next is mode of nutrition. All the living organisms they take food from the surroundings. They all need energy, but the type of food they take, how they take, that differs. There are two main modes of nutrition. One is autotrophic nutrition, another is heterotrophic nutrition. Now auto means self, trophic means nutrition. These organisms they are able to produce their own food by taking inorganic various raw material, just as simple carbon dioxide and water from the surroundings. Then these type of nutrition is known as autotrophic nutrition. In the surroundings we see plants, they prepare their own food, and that type of nutrition is known as autotrophic nutrition. And this type of nutrition that is performed by green plants and some bacteria, and they are known as autotrophs, means they produce their own food. Now autotrophic nutrition, they are also known as producers because they produce food. Next is heterotrophic nutrition. Now this is performed by the organisms which can't prepare their own food. They take food from the surroundings in the form of complex form. Heterotrophic nutrition, they are also known as consumers because they consume food from other sources. Some animals they take plant products, depend on plants for food, and some organisms, some animals they eat other animals. And all these types are heterotrophic nutrition. Now first we will study about autotrophic nutrition, that is performed by green plants and some bacteria. How they produce food? They produce their food by the process known as photosynthesis. Now photo it means light. They produce their food with the help of light energy. From where they get light? Sun, solar energies. Okay, they produce food in the presence of sunlight, and they take simple carbon dioxide from the atmosphere and water, and in the presence of sunlight they produce their food in simple form carbohydrates.
Then oxygen is released in the atmosphere, that is life supporting gas, and water is also released, and these simple carbohydrates are made. And when the plants, they do not need more food for the energy, that produced food is stored in the plants in the form of starch. And what is this chlorophyll? Chlorophyll that is present in the green plants, leaves of green plants, is cell organelle is present, that is known as chloroplast. And chloroplast, उसके अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल. ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिससे क्या होता है? ग्रीन कलर मिलता है लीव्स को. दिस क्लोरोफिल दैट एब्सॉर्ब सनलाइट. तो प्रोसेस ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नेक्स्ट इज इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस तो होता है, हमें पता है CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, और क्लोरोफिल जो है वो क्या करती है? सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं. पर ये इवेंट्स कैसे होती हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है लाइट एनर्जी. मैंने पहले भी बताया व्हाट इज क्लोरोफिल. जो ये ग्रीन कलर की क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेले होते हैं प्लांट सेल में, उसके अंदर क्लोरोफिल होती है, वो एब्जॉर्ब करती है लाइट एनर्जी को. देन कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. तो ये लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, वो किससे कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में. और वो केमिकल एनर्जी किसमें यूज होती है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. In the presence of light energy. Light energy is converted into first into chemical energy, and that light energy is absorbed by chlorophyll. Then ये जो ऑक्सीजन तो चली गई कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में. अब हाइड्रोजन दैट इज यूज इन द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से ली है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ से स्प्लिट होके निकली है, ये इसको रिड्यूस करती है इन कार्बोहाइड्रेट्स, एंड वाटर इज रिलीज्ड. अब ऐसा नहीं है कि एक स्टेप होने के बाद इमीडिएटली जो है वो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है. अब जैसे डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं, फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज एक्टेड अपॉन इन द डे विद द लाइट एनर्जी, बिकॉज लाइट एनर्जी दे टेक अप इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट इज हाउ द कंपोनेंट्स नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस आर टेकन बाय प्लांट्स. अब तो ये तो हमें पता चल गया क्या चाहिए प्लांट्स को. मेनली कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, फिर क्लोरोफिल क्या करती है? लाइट एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है. तो प्रोसेस होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी. फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो बताया, कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स. बट सारे कंपोनेंट्स कैसे मिलते हैं? फर्स्ट नीड इज लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी है कौन सी? सोलर एनर्जी. सन से जो हम लाइट एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है वो कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल. क्या होता है इन द मॉर्निंग? क्या है ये? सेक्शन है लीफ की, ये हम देख रहे हैं, ये अपर लेयर है जो लीफ की, एपिडर्मिस, और इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है. ठीक है. देन ये इसमें सेल, ये है क्लोरोप्लास्ट. ये ग्रीन कलर के डॉट्स हैं, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट. देन ये क्या है? एयर स्पेसिस है बीच में. फिर ये लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं और स्टोमेटा है. ठीक है. अब आते हैं यहाँ पे फिर से, ये जो ग्रीन कलर के डार्ट्स हैं ये है सेल ऑर्गेनेले, दे आर क्लोरोप्लास्ट. बट दे कंटेन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर की पिगमेंट क्लोरोफिल होती है. वो क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, एंड दैट सनलाइट इज कन्वर्टेड टू, मैंने पहले भी बताया किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में. वो केमिकल एनर्जी क्या करती है? वाटर को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है? क्या अभी मैंने बताया था उस सेक्शन में कि लोअर एपिडर्मिस में क्या थे? गॉड सेल्स, स्टोमेटा बताया था, ये होते हैं स्टोमेटल पोर. तो व्हाट इज ये स्टोमेटल पोर है क्या? बेसिकली दीज आर द फंक्शन ऑफ गॉड सेल्स. ये गॉड सेल्स है. क्या होते हैं? जब ये गॉड सेल्स जो हैं वाटर इसमें फिल हो जाता है तो इसमें टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है. उससे ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं. ठीक है. अब जब वाटर रिलीज होता है तो ये क्या हो जाते हैं? ये फिर से श्रिंक हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं. ठीक है. अब ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं इसमें से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है. प्लांट्स दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दीज स्टोमेटल पोर्स. फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होती है
तो जब हाई वाटर जो है वो स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन जो है यहाँ से बाहर आ जाती है स्टोमेटल पोर से। तो गैसियस एक्सचेंज जो है, taking of carbon dioxide and releasing of oxygen in the atmosphere, that occurs through these stomatal pores, and these stomatal pores, they are the function of guard cells. Okay, नो अब ये गैसेस एक्सचेंज तो होता ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर भी तो गार्ड सेल से बाहर यहीं से जाता है ना, तो वाटर भी एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो क्या होता है रात को एट द नाइट दीज टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। उसको किसको प्रिवेंट करते हैं, लॉस ऑफ वाटर को। नेक्स्ट क्या चाहिए, वाटर चाहिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, और मिनरल्स भी चाहिए। कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। अब क्या होता है, वाटर कैसे मिलता है प्लांट्स को, हम प्लांट्स को वाटर देते हैं ना, वाटरिंग करते हैं ना, तो कहाँ देते हैं, सॉइल में। सॉइल में क्या होती है, प्लांट्स की रूट। रूट क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द साइल अलोंग विद, ये सारे कंपोनेंट्स, सारी मिनरल्स किसमें है, सॉइल में, सॉइल से ले लेते हैं, और ये वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ प्लांट। ठीक है, अब ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं, सारे मिनरल्स जो हैं, ये वाटर के साथ प्लांट में मूव करते हैं। और नाइट्रोजन तो पता है एटमॉस्फेयर में बहुत अबंडेंस में प्रेजेंट है, बट डायरेक्टली वो नाइट्रोजन गैस को नहीं एब्जॉर्ब करते, दे टेक इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं कंपाउंड्स में, दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द plants through their roots. Now for more videos please